campus grounds at the festival venue. I request all of you to please arise to receive our chief guest. Our honorable chief guest, Shri Bhupendra Yadav ji, author of The Rise of BJP, Honorable Union Minister of Labor and Employment, and Minister of Environment, Forest and Climate Change. Could we please welcome our chief guest with a huge round of applause? I request all the dignitaries to please join on the dais. Request everyone to be seated, please. Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupen Sansthita. Namastasya, 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 Namo Namah. First and foremost, salutations to the Devi who lives in all beings in the form of intelligence and wisdom. And next, salutations to all of you who've joined us today on this bright February morning when the winter winds are still washing all over us. I'm Dr. Meera Kapoor, and I extend a very hearty welcome to our chief guest, Shri Bhupendra Yadav ji, our director, Dr. Harivansh Chaturvedi ji, Deputy Director BIMTech, Dr. Anupam Verma ji, venerable faculty, staff, eminent guests, and all my dear students. The stage is set for BBLF 3, the third offline edition proudly presented by the business communication area of BIMTech. We hope you enjoy the festival as much as we enjoyed putting it together for you. So the BIMTech BizLit Fest is the forum where leading voices of the country and the business literature world congregate to bring to the table contemporary ideas and wisdom. At BIMTech, our constant endeavor is the evolution of our students, and we believe that books empower and enable. BBLF accords that opportunity not just to our students, but to all its attendees to learn from the authors and their books, to learn the stories and journeys behind those books, and learn from the experience and expertise of all our guests. The seed of BBLF was planted way back in 1988, but I'm not going to dwell on the fact that which year it was. Instead, I'm going to dwell on when those seeds reached their fruition in 2021. BIMTech became the first B school in the country to curate its very own business literature festival. So to yourself, the patrons of business literature, and to BBLF, could we please start with a huge round of applause, ladies and gentlemen. Birla Institute of Management Technology lies in the heart of the national capital to foster and nurture management skills. And management education is incomplete without the magic of books. Through the BizLit Fest, we celebrate the inspirational effects of all those books on the business world. Without any further ado, let's begin the festival proceedings with an invocation to God Almighty. I now request the dignitaries to please come forward for the ceremonial lamp lighting. Ladies and gentlemen, may I request all of you to please stand for the invocation.
Thank you so much, sirs. I would now like to request the source of our inspiration and the inspiration behind BIMTech Business Literature Festival, Dr. Harivansh Chaturvedi, Director BIMTech, to give a fragrant welcome to our chief guest, Shri Bhupender Yadav ji. Could we have the bouquet, please? Welcome to BIMTech, sir. We are honored to have you amongst us today, sir. The BBLF deck will be graced by a roster of notable speakers, thought leaders, and authors who will step off the page and onto the podium at BBLF over the next 2 days. Allow me to present the festival insights to share what we have planned for you. Okay. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. So since there's a paucity of time, we will straight go to the address by our chief guest. Ladies and gentlemen, it's my privilege and pleasure to introduce you to our chief guest today. Shri Bhupender Yadav ji is an Indian politician who serves as the Union Cabinet Minister of Labour and Employment, Environment, Forest and Climate Change in the Government of India. He is the National General Secretary of the Bharatiya Janata Party and a Member of Parliament in the Rajya Sabha representing the state of Rajasthan, a position he's held since 2012. He was born in a small village in a district of Haryana and rose from the ranks of the General Secretary of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad to a Member of Parliament Rajya Sabha, while discharging his duties as government counsel in prestigious commissions such as the Justice Wadhwa Commission for Important Counsel and also as an advocate in the Supreme Court of India. Shri Bhupender Yadav ji has authored many books including Supreme Court on Forest Conservation and the opus, The Rise of BJP. The book chronicles the history of the Bharatiya Janata Party, is meticulously researched and immensely readable. We welcome you, sir, now to deliver the inaugural address of BBLF 3. Let's put our hands together for our chief guest. Thank you very much to inviting me this Business Literature Festival. My dear young friends, ladies and gentlemen, समय की मेरे को थोड़ी इसलिए कमी है कि 11 बजे से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। किसी भी नेता के लिए अच्छा होता है सामने श्रोता मिल जाए, माइक मिल जाए, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपका लिटरेचर फेस्टिवल है ये एक तरफा ना रह जाए। आपके 2 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में मंथन हो, इसके लिए आपस में कम्युनिकेशन हो। और मुझे अभी प्रोफेसर चतुर्वेदी बता रहे थे कि जो आपका बिजनेस स्कूल का जो आपने पाठ्यक्रम तय किया है वो केवल सब्जेक्ट बेस नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जो अभी शुरू में एंकर बता रहे थे कि बिजनेस मॉड्यूल के विजडम के लिए बुक्स का काफ़ी महत्व होता है, और हम भी बुक्स से जब परिचित होते हैं तो जनरली बुक्स 2 तरह के विषयों को लेकर के आती हैं। या तो राइटर का अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सब्जेक्ट को लेकर के हो सकता है, फीलिंग्स को लेकर के हो सकता है, कोई
एक्सपर्टीज़ को लेकर के हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी को लेके हो सकता है, जो अपने अंदर जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो बुक के रूप में सामने आता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस सब चीज़ों में हो, तो जो इमेजिनेशन होता है, जिसको हमने देखा नहीं होता है लेकिन हम इमेजिनेशन को मान करके चलते हैं, उस इमेजिनेशन के बेस पे भी हम बुक लिखते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन कोई भी बुक, जो भी बुक राइटर लिखता है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं, चाहे उसके अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से आए, चाहे उसके इमेजिनेशन से आए, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी का भी उसमें असर होता है। उनकी पर्सनालिटी कल्चरल है, रिलीजियस है, साइंटिफिक एटीट्यूड की है, सोशल है, उनके व्यक्तित्व में इम्पल्सिवनेस है, रैशनल है। ये हमेशा बुक के साथ जोड़ती है और बुक को पढ़ने के बाद हमको भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ विषय मिलता है। जब हमको पूरा मिलता है तो बुक पूरी पढ़ते हैं, नहीं मिलता है तो छोड़ के आगे चल देते हैं। हमारे एक मित्र थे, जब ये नया नया ट्विटर शुरू हुआ था 8-10 साल पहले, तो अच्छे राइटर थे। तो मैंने उनको कहा, आप सोशल मीडिया पे नहीं आते, आप ट्विटर पे नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी विजडम को कैसे केवल 160 वर्ड्स में लिमिट करके रखूं, मैं तो इतना बोल सकता हूं। बाद में कुछ समय पहले मेरा योग सूत्र पढ़ने का अवसर मिला और मेरे को लगा कि दुनिया में बेस्ट विजडम वही है जो कम से कम शब्दों में आए, लेकिन हर मिनट और हर आवर में अगर आएगी तो फिर उसमें जो एक गहराई है वो नहीं होगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन भी बुक का एक पार्ट होता है। इसलिए आज के समय में ये जो समय है, ये बड़े सेंटेंस लिखने से ज़्यादा एल्गोरिदम में ज़्यादा विश्वास रखता है या पॉडकास्ट में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो भी हमारे लिटरेचर को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एमबीए के लीडरशिप कोर्स में जा भी रहे हैं और बुक फेस्टिवल में भी आ रहे हैं। मेरे को कोई जवाब देगा कि आज के समय में जो भी बुक पढ़ी जाती है, ज़्यादा हम किस चैलेंजेस को फेस करते हैं इसलिए बुक को पढ़ते हैं? एनी स्टूडेंट्स? सेल्फ हेल्प, और जोर से सेल्फ हेल्प, टाइम मैनेजमेंट, या टाइम मैनेजमेंट की सेल्फ हेल्प के लिए? यस, वी हैव ए पर्सपेक्टिव। अदर? fiction, that's an imagination. And जल्दी से गूगल में देख लो, नहीं, you will check, you will found the answer also or not. So self-help, time management, perspective, fiction, and for the purpose of degree भी नहीं। कौन सी बेस्ट पॉपुलर 5 बुक हैं लेटेस्ट? कोई भी बताए जो अभी सबसे जो आपको अच्छी लगी हो। एनी स्टूडेंट? सर्टन आर्ट्स,
नेक्स्ट, एनी मैनेजमेंट स्टूडेंट और नो? खड़े होकर बोलिए जरा जोर से। कौन से? जापानीज राइटर। ओ यस, एक ही। एंड Hello. The Secret by Rhonda Byrne. द सीक्रेट। एंड आवाज जरा माइक दीजिए। डू एपिक। कौन सी चीज आपको ज्यादा इंस्पायर करती है? चलिए, जिन्होंने बुक पढ़ी है वो बताएं। तो जो नहीं बोलने वाले हैं वो बोल रहे हैं अच्छा है हम बच गए, ऐसा नहीं है? सर, सीक्रेट बुक पढ़ी थी बाय रॉन्डा बर्न, तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे को ये लगती है, अच्छी लगती है कि किस तरीके से आप जो भी चीज़ चाहते हैं, तो ये जो पूरा कहना चाहिए ब्रह्मांड है, वो किस तरीके से वो चीज़ आपको देता है, जो मैसेज आप उसको भेजते हैं, जो अपना पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो किस तरीके से वापस आते हैं आपके पास। तो ये चीज़ मुझे वहाँ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। दैट्स गुड। और हेलो सर, मेरे हिसाब से जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जो मैंने मार्क मैनसन की सटल आर्ट ऑफ लिविंग की बुक पढ़ी थी, उससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई कि हाउ कैन यू लिव इन अ वे दैट यू टेक ऑल द इनिशिएटिव्स। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, बिकॉज वही एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हम डर के इनिशिएटिव्स ही नहीं लेते हैं। तो टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट द फियर ऑफ जजिंग इज समथिंग दैट बुक हेल्प मी अ लॉट इन दैट। एनी अदर? यस यस। Sir, I read the book The Alchemist. That was all about the journey of a boy in his life, the stages he goes through from his love journey to his journey to find actually what he's all about. So that was one of my favorites because it covered from the scratch till the end all about his journey. Everybody is talking about the journey and the ultimate success. Yes. Hello sir, so I'm Mini Agrawal. So again, I also like, one of my favorites is The Alchemist only by Paulo Coelho. So my reason it's my favorite is because it's about, there are many times when you're scared to do something, and it's about at the end, your worst fear doesn't necessarily ever come true. And there's a quote there that the fear of suffering is worse than the suffering itself. So you should always go forward to whatever you want to do. This helps you to achieve your highest potential in the end. Any other thing? किसी को कोई बुक ध्यान में आ गई? यस यस। Sir, I read The Sapiens. So it talked about human evolution from where we had started and from where we will be going, looking into the future, sir. It's ended in Sapiens book or the other two books also? No, sir, in human Homo Deus also Then? he mentioned about it. हाँ, तो it started in Sapiens book and ended in Homo Deus. Yes, sir. वेरी गुड। आप लोगों ने अच्छी बातें कही और जर्नी की बात आप सब लोगों ने कही। वास्तव में इस समय दुनिया में इवन सारे एमबीए के कोर्सेज में, सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज में जो सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी मेकिंग में है वो आपका इनर विजडम है, आपकी जर्नी है। और मेरा ये मानना है कि जितने भी आज के समय में मैं काफ़ी सारे कोर्सेज को सुनता हूँ, देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के या काफ़ी
लोगों के विषयों को जाकर के जानने का प्रयास करता हूँ, जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि आज युवा होने के बाद कल आप अपने फ्यूचरिस्टिक लाइफ को जब आप लीड करोगे तो एक अवेयरफुल लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि इंडियन साइकोलॉजी में सबसे अच्छा पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, इट्स नॉट श्लोक, इट्स ओनली सूत्र, वन सेंटेंस है जो 196 सेंटेंसेस हैं और टोटल 196 सेंटेंसेस उनके 5 चैप्टर्स में है। और फर्स्ट चैप्टर के जो सेंटेंस है वो पूरा जो विषय आपने अपनी अलग अलग बुक्स में कहे हैं, मुझे लगता है वो 2 सूत्र में ही काफ़ी आते हैं। वो पहले सूत्र में जब वो करते हैं योगा अथ अनुशासन, आजकल सब लोग योग को काफ़ी अपनाने की बात करते हैं, आसन को अपनाने की बात करते हैं, लेकिन पतंजलि जो अपने सूत्र में कहते हैं माइंडफुलनेस में, वो आसन के साथ साथ आपके एटीट्यूड को सुधारने की बात करते हैं। तो वो कहते हैं योग अथ अनुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध, कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मन के ऊपर चलती है। और मन की जो वृत्ति है वो 5 प्रकार की बताते हैं, 5 टाइप ऑफ मन की जो भूमि है जिसके ऊपर आप सारा काम करते हैं। और आप अपनी पर्सनालिटी को अगर गहराई से देखेंगे तो वो 5 चीज़ें आपको दिखेंगी। वो कहते हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, मूड, एकाग्र और निरोध। या तो हमारा मन रेस्टलेस होता है, बैठा दिया, 10 बज रहे हैं, 10:30 तक तो भाषण कराएंगे, हम बैठे हैं लेकिन रेस्टलेस हैं। आइदर वी आर डिस्ट्रैक्टेड, चलो बोलते रहो, बोलने दो, मैं देख रहा हूँ अपना यूट्यूब में चलता रहेगा, जो जाएगा वो जाएगा। सो आइदर वी आर रेस्टलेस और वी आर डिस्ट्रैक्टेड और सम टाइम स्टूपिड, जिसको वो कहते हैं मूड। अचानक जाकर के हम कभी कभी ऐसी हरकत कर बैठते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ कर बैठते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, इमोशन कर बैठते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी स्टूपिडिटी को दर्शाता है। और आइदर वी आर कंसंट्रेट, जिसको वो एकाग्र कहते हैं, और वी आर इन साइलेंस। जितनी भी माइंडफुलनेस की सारी एक्सरसाइज जितनी भी दुनिया की किताबों में लिखी है, आप बहुत गौर से देखना और अपनी पर्सनालिटी को गौर से देखना। ये सारी पर्सनालिटी इन 5 चीज़ों में है। तो 5 चीज़ें होने के बाद वो बहुत सुंदर आगे कहते हैं कि ये जो 5 एक्टिविटी आपके अंदर जो आपके माइंड में रहती है, इसको और 5 चीज़ें लगातार इस पे वर्किंग करती हैं। हम अपना, जिसको हम कहेंगे आइदर वी आर रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टेड, और वी आर समटाइम स्टूपिड, और वी आर समटाइम कंसंट्रेट और इन साइलेंस। तो 5 चीज़ें इसको बहुत अट्रैक्ट करती है हमारी लाइफ को बढ़ाने के लिए, जो इसको हम मन का कार्य कहते हैं। पहला, हमारा मन करता है प्रत्यक्ष, तो हम किताब से देखते हैं, किसी से सुनते हैं। दूसरा, हम इमेजिनेशन थॉट में जाते हैं, जिसको विकल्प वृत्ति पतंजलि कहते हैं। या हम फॉल्स नॉलेज पे जाते हैं, जिसको विपर्यय हम लोग कहते हैं। या हम निद्रा में जाते हैं। तो आप कहोगे सोते समय तो हम कुछ करते नहीं हैं, हम सो रहे होते हैं, लेकिन हम सोते समय भी हमारे अंदर विचार आते रहते हैं, क्योंकि मन जब तक रेस्टलेस रहता है तो नींद भी आपकी वैसी होती है। और या फिर स्मृति होती है, कहीं ना कहीं याद करी हुई कोई अच्छी बुरी बातें हमेशा हमारी मेमोरी में रहती हैं और वो एक टाइम पे प्रकट होती हैं। मैनेजमेंट इन 5 ये जो 5 हमारे मन की स्टेजेस हैं, और 5 स्टेजेस पे काम करने वाले जो 5 प्रकार है, इसको रोकने का नाम, इसको कंसंट्रेट करके चलने का काम, ये योग है। और बात के ये मैंने आपको 2 सूत्र तो आज ऐसे ही मेरे ध्यान में आया, क्योंकि जब मैं चतुर्वेदी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि माइंडफुलनेस पे आजकल बड़े विषय और टॉपिक चलते हैं, तो
मेरे को ऐसे दो विषय ध्यान में आए, मैं बहुत लिखा हुआ नहीं बोल रहा, लेकिन इन दोनों चीज़ों का अगर कोऑर्डिनेशन लाइफ में होता है तब आप फिर वापस से योग से जुड़ते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि मैनेजमेंट की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से, हम लोग जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, बाहरी सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक आंतरिक शांति आपके पास ना हो। आप बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, मैनेजमेंट के बड़े आदमी हो जाएंगे, अगर आपकी रेस्टलेसनेस रहेगी, आप हो सकते हैं अपने परिवार की परिस्थिति से किसी कंपनी के मैनेजर बन जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा डिप्रेशन की गोली खानी ही पड़ेगी। आप अपने संबंधों में, अपने विषयों में जब तक आप ये इस प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं करेंगे, तब तक जीवन की सफलता पाने के बाद भी मैं बहुत लोगों को निराशा में डूबे हुए देखता हूँ। जीवन कोई बहुत बड़ी सीढ़ी पर चढ़ कर के ऊपर पहुँच जाना नहीं है, अपने संबंधों को सहजता से जीने का नाम जीवन है। और इसलिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए, एक व्यक्तित्व बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि हम अपने मन की प्रवृत्ति और माइंडफुलनेस को जगा करके रखें। और एमबीए के इंस्टीट्यूशन का जो अर्थ है और एमबीए का जो सबसे बड़ा अर्थ है कि आप किसी भी संस्थान को मैनेज करने जाएंगे, वो मैनेजमेंट का गुण, अगर मैनेजमेंट करने वाला शांत नहीं होगा तो संस्थान भी मैनेजमेंट में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारे रिलेशनशिप हर एक के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप में रेस्टलेसनेस रहेगी, हमारे रिलेशनशिप में और हमारे बिहेवियर में हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, अगर हम अपने काम से, हमें कई बार लगता है कि सामने कोई हमारे कमरे में कोई हमारा 4th क्लास का आदमी आया और जैसे ही कोई उसने एक कप चाय का कप बढ़ाया और हमने कहा हट, तो आपका ये जो स्टूपिडिटी पर्टिकुलर टाइम पे है, सामने बैठा हुआ कोई आदमी उस समय आपको नहीं कहेगा, टोकेगा नहीं, लेकिन आपका एक इमेजिनेशन बन के जाएगा कि ये बहुत बड़ा मैनेजर होगा, स्कूल का प्रिंसिपल होगा, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर बिहेवियर है, स्टूपिडिटी केवल बेवकूफ़ी नहीं होती, हम बड़े होने के बाद भी अपने एक्ट में जो दर्शाते हैं वो स्टूपिडिटी की श्रेणी में आता है। इसको कंसंट्रेट करके जो जीता है उसको योग कहते हैं। और इसलिए आजकल दुनिया में बहुत योग का नाम चलता है। बाहर की पावर को अपने अंदर ला करके कंसंट्रेट करना योग है, अपनी इंटरनल पावर को मजबूत करके दुनिया में उसका अच्छा क्रिएटिव रूप देना ये यज्ञ है। दिस इज़ द इंडियन फिलॉसफी, दिस इज़ द इंडियन साइकोलॉजी। आज दुनिया में जिसको जैन ईस्टर्न फिलॉसफी का, जो कई बार लोग कहते हैं कि हम जैन विजडम को अपना रहे हैं, ये जितनी भी बुक्स आप बता रहे हो ये सब ईस्टर्न फिलॉसफी के विजडम से निकली हुई बातें हैं। इतना ज़रूर है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी में यह को बात किया जाता है, यह रिलेशन, यह पोस्ट, यह ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न फिलॉसफी में मैं को ध्यान में किया जाता है। मेरे अंदर का जब, अपने अंदर का जब मन ठीक होगा तब मैं यह को ठीक कंट्रोल कर पाऊंगा। दुनिया में दो ही समस्याएं हैं, एक पर्यावरण और एक मन। पर्यावरण हमारे बाहरी एग्जिस्टेंस को दिखाता है, मन हमारे भीतरी एग्जिस्टेंस को बताता है। मन को जब ठीक करते हैं तब बाहर को हम ठीक ढंग से जी पाते हैं। आप अपने रिलेशंस को, अपने विषयों को, अपने कैरियर को अच्छे ढंग से जियो, आगे बढ़ो। और इंडियन फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न विजडम में इसके लिए काफ़ी लिखा हुआ है। मेरे को लगता है उस पर भी अगर अलग से चर्चा हो तो वो भी आपके भविष्य के लिए और आपके कोर्स के लिए अच्छी मार्गदर्शन का काम करेंगे। आपने मुझे बुलाया और सुबह आपने मेरे को आपके साथ बात करने का अवसर दिया। समय मेरे पास कम है, लेकिन मैं इस संस्थान का धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों से बातचीत करने के बाद मेरे मन के जो इनर थॉट्स आए उसको मैंने आपके पास शेयर किया। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. This inaugural address has set the tone for the rest of the festival. बहुत कम शब्दों में आपने हमें सूत्रों और जीवन दोनों का ही सार दे दिया है। Bhimtek आपका आभारी है सर। Thank you so much for that wonderful address. If we have any more questions from the audience, students, would you like to ask any questions? Yes, could we have the mic over there, please? पहले स्टूडेंट
we'll just quickly take 2 questions from the audience. Yes, please. Sir. Hello. Yeah. Sir, you have written the glorious journey of BJP. Can you please share the moment which fascinated you to write down this beautiful journey and write the book, The Rise of BJP? माइक ऑन कर दीजिए प्लीज. स्टेज का माइक ऑन कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. मैं आइडियोलॉजी से बचपन से आरएसएस से जुड़ा रहा और अपने स्टूडेंट लाइफ से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ता हुआ मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बना. सुप्रीम कोर्ट में मैं लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का 9 साल तक ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना और फिर मैं राज्यसभा में गया. सो एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट के साथ जुड़ कर के लगातार मैं अपनी लाइफ में कार्य करता रहा और एक ऐसा भी अवसर आया जब बहुत सारे देश के बड़े नेता के साथ मेरे को लगातार पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का और देश के डिफरेंट पार्ट्स में काम करने का अवसर मिला. राजस्थान में, हरियाणा में, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में मैं लगातार ज़मीन पे काम करता रहा. 21 ईयर तक मैं ऑल इंडिया में घूमता रहा. जब इस किताब को लिखने का मन में आया तो उस समय मेरे मन में ऐसा था कि 2019 के चुनाव में बीजेपी दोबारा से चुनाव जीत करके एक सेंट्रल पार्टी के रूप में बीजेपी ने अपना स्थान बनाया. कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी 2 बार लगातार पिछले 30 साल से नहीं जीती थी. पर ये पार्टी तो स्टार्ट हुई 1950 से और सेंटर में पहुंची 2014 में और उसके बाद 2019 में दोबारा जीती. उसके पहले भी अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके पहले जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और 70 सालों में देश में कई तरह के मूवमेंट इस पार्टी ने खड़े किए. चाहे बेरूबारी को बांग्लादेश में देने का विषय हो, चाहे गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन का विषय हो, चाहे इमरजेंसी के समय में विषय हो, चाहे 60s में गौ हत्या के विषय में बात उठाने का विषय हो, चाहे 89 में बोफोर्स के करप्शन का विषय हो और उसके बाद यूपीए के पॉलिसी पैरालिसिस का विषय. कुछ आइडियोलॉजिकल विषय भी उठाए, कश्मीर के विषय को उठाया, राम मंदिर के विषय को उठाया, 3 तलाक के विषय को उठाया. कुछ विषयों में हमारे ऊपर कुछ आरोप भी लगे कि हम छोटी मानसिकता के लोग हैं, संकीर्ण मानसिकता है, शहरी पार्टी है. तो पार्टी ने अपने आप को आइडियोलॉजिकली सेंट्रल राजनीति के सेंटर में स्थापित किया, ज्योग्राफिकली अपना एक्सपेंशन किया. तो इस जर्नी को करने के लिए एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड वर्क लगा. तो इसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होगा, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होगा, इसको स्प्रेड करने का कोई तरीका होगा. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आगे बढ़ता है उसकी कुछ काम करने की अपनी कार्य पद्धति होती है, क्योंकि इसमें कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है. तो एक समान विचार के लोग 70 साल तक एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर सकते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो एक देश की सेंट्रल राजनीतिक पार्टी है. तो इस जर्नी को मैंने चूँकि 21 साल तक लगातार अपने आप में जिया था, डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब विषयों पे काम करा था, तो मुझे लगा कि एक नरेटिव और बुक के रूप में आना चाहिए. लेकिन मेरे को लगा कि अगर मैं खाली लिखूंगा तो ऐसा लगेगा तो किसी बीजेपी के आदमी ने लिखा. तो इला पटनायक जी जो देश की बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथी हैं, आइडियोलॉजी में भी वो पूरा जेएनयू से पढ़ी हैं. तो मैंने कहा मैं ये पर्सपेक्टिव रखूँगा, आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना ताकि एक सही रैशनल हम लोगों के सामने दे पाए. मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने मेरे साथ मिलकर लगभग कोविड के 2 साल हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वीडियो पे, यूट्यूब पे, इस पे डिजिटली हम लोग एक दूसरे से लगातार, टाइम खूब था तो बातचीत करते रहे, फ़ोन पे रोज़ एडिटिंग करते रहे. लेकिन एक रैशनल तरीके से, सही तरीके से एक नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स का पर्सपेक्टिव आए, उसको लेकर के मैंने लिखा. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बुक को पेंगुइन ने पब्लिश भी किया और आज वो देश में जो सबसे अच्छी पॉलिटिकल नैरेटिव बुक्स हैं उसमें गिनी जाती है. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir.
वी आर माइंडफुल ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट सर, Excuse me. बट हम सिर्फ 2 मिनट और लेंगे आपसे. आपने JNU मेंशन किया था सर, एंड वी हैव विद अस ऑन द डेज डॉक्टर भरत देसाई, who is a professor and holds the prestigious Jawaharlal Nehru Chair in International Environmental Law and is a professor of international law at JNU. And he would like to present a copy of his latest book to you, sir, for unveiling at BBLF. Envisioning our environmental future. That's the book being presented to our chief guest. Thank you so much, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे हम ऑडियंस से. थैंक यू मैम Yeah. फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने अभी जर्नी अपनी बताई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट थी जिस तरीके से हम देख सकते हैं लोकसभा में, और अब सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आजकल के युवाओं को एक तरीके से प्रोत्साहित किया है राजनीति की ओर, क्योंकि राजनीति में पहले युवाओं का इतना आकर्षण नहीं था, उसके बावजूद अब हम जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा युवाओं का ही आकर्षण होता है राजनीति में. तो आप क्या एक सीख देना चाहते हैं, या आप क्या एक प्रोत्साहित करना चाहते हैं युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा है मोदी जी का जो करिश्मा है वो काफ़ी एक लोकप्रिय नेता के तौर पे है, मगर हम वही देखते हैं कि एक अपोजिशन में इस तरीके का कोई नेतृत्व नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है. तो क्या ये एक रीज़न है बीजेपी का लगातार 2019 और 24 और 2014 में आना बार बार? तो क्या हम ये एक रीज़न मान सकते हैं? 2 प्रश्न एक साथ है सर. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी ये मत समझना कि राजनीति में देश में हमेशा रिजेक्टेड माला है. ये आप लोग की गलतफहमी रहती है. इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के समय में सुभाष बाबू आए तो ICS का एग्ज़ाम छोड़ के आए, अरविंद घोष आए तो IAS का एग्ज़ाम छोड़ के आए, लोहिया जी आए तो जर्मनी से MA करके आए, जयप्रकाश जी आए तो बाहर से पढ़ करके आए, मुरारजी भाई आए तो गीता और गांधी के प्रिंसिपल पर ICS नौकरी छोड़ करके आए. और आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आज के समय में हमारी पार्टी में अरुण जेटली आए तो सुप्रीम कोर्ट की बेस्ट प्रैक्टिस छोड़ करके आए, आज जयशंकर जी आए तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह गए, निर्मला सीतारमण जी आई तो स्टैनफोर्ड वगैरह से ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके फिर वापस राजनीति में आए. मान लो हमारे पीयूष गोयल भी आए तो चार्टेड अकाउंटेंट रह गए. राजनीति आप कभी भी मत मानना कि जो देश के लोगों का नेतृत्व करना चाहें वो कोई कभी ऐसा एक प्रोजेक्शन है, क्योंकि छपता समाचार पत्रों में नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन चूंकि विचारों का संघर्ष चलता है, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि राजनीति टैलेंटेड लोगों की जगह है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है उसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हमने कर लिए हैं. ये अमृत काल है. मेरे जैसे आप में से ही कोई व्यक्ति निकल के 25 साल बाद मेरी उम्र में आके देश को आगे बढ़ाने का काम करे, मैं आपसे भी अपेक्षा करूँगा. इसलिए राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए ताकि भारत की यात्रा अच्छे नेताओं के साथ और अच्छी ऊंचाई पर जाए. यही नरेंद्र मोदी जी की काम. थैंक यू. Thank you so much, sir, for taking out time from your hectic schedule. And now may I request Director, sir, Dr. Harivansh Chaturvedi, to please thank sir in 2 words. And may we have a small token of our gratitude for him, please. Thank you so much for taking time and talking to us today, sir. मैं पहली बार आज के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी से मिला हूं, लेकिन 1 साल पहले हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
मैं हमारे एक मेंबर हैं जो देश के लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अजीत रानडे, और वो आदित्य बिरला ग्रुप में चीफ इकोनॉमिस्ट रहे और सीईओ भी रहे। और एक साल पहले उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर एकेडमिक वर्ल्ड में रिसर्च पर काम करेंगे। भारत सरकार ने, नीति आयोग ने उनको कुलपति बनाया गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में। एक साल पहले मैं उनसे जाके मिला तो हम लोगों ने डिनर साथ किया और उनसे बात हो रही थी भारत की राजनीति पर। तो मैंने एक सवाल पूछा उनसे कि आप भविष्य में भारत के आज के किन युवा नेताओं को ये समझते हैं कि वो भविष्य में भारत का नेतृत्व करेंगे, और किसी का नाम नहीं लिया मैंने। उन्होंने नाम लिया जिस व्यक्ति का, वो आज हमारे बीच में है। तालियां बजाकर श्री भूपेंद्र यादव जी का स्वागत करें। उन्होंने कहा कि एक आदमी है भूपेंद्र यादव, और वो अभी मंत्री बने हैं, और आप देखिए कि वो बहुत प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और लोग ये मानते हैं कि भविष्य में जब कभी भी बड़े मौके आएंगे उनका नाम सबसे आगे आने वाले नामों में होगा। तो ये मैं आज उनके सामने कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि एक निष्पक्ष व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचता है, शायद वो मिले भी नहीं होंगे डॉक्टर अजीत रानडे से कभी। दूसरी बात, वो भी उनके बारे में अभी 22 जनवरी को मेरा एक पारिवारिक कार्यक्रम था, और मेरे मित्र प्रभात खबर अखबार जो रांची से निकलता है उसके प्रधान संपादक यहाँ आए हुए थे, और मेरे घर में जो बेटी बहू बनकर आई उसका संबंध एक आध्यात्मिक गुरु के से है जिसका नाम था परमहंस योगानंद जी। आप लोगों ने उनकी किताब पढ़ी होगी, बायोग्राफी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, and this book has been translated into so many languages and millions of copies have been sold during the last 100 years. परमहंस योगानंद अमेरिका गए, उन्होंने वहाँ पर अपना एक मूवमेंट शुरू किया, और उस मूवमेंट से लाखों लोग जुड़े, और आज भी तो बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो उनका हेड ऑफिस जो है, जो जहाँ से शुरुआत हुई योगोडा उस संस्था का नाम है, वो रांची में है, और रांची में वहाँ पर लोग चुपचाप आते हैं, बड़े बड़े लोग चुपचाप आते हैं, मेडिटेशन करते हैं और चले जाते हैं। और उसमें उन्होंने नाम लिया कि भूपेंद्र यादव जी वहाँ पर बिना बताए हुए चुपचाप आते हैं, 3-4 दिन तक मेडिटेशन करते हैं और चले जाते हैं, और उस दौरान वो किसी से, अपनी पार्टी के लोगों से भी, किसी से भी नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे इनके व्यक्तित्व के बारे में मुझे मालूम पड़ी। और मैं, हमारे विद्यार्थी अक्सर युवाल नोहारी की किताब का जिक्र करते हैं और पढ़ते हैं, और उनकी किताबें भी करोड़ों बिक चुकी है, और वो एक बहुत प्रतिभाशाली दार्शनिक और लेखक के रूप में उभर कर आए हैं। उनमें भी वही प्रवृत्ति है कि 3 महीने के लिए वो भारत के किसी मेडिटेशन सेंटर में जो बम्बई के पास में है, और वो क्रिया योग वाला नहीं, विपासना वाला है, वहाँ 3-4 महीने वो रहते हैं, मोबाइल और लैपटॉप उठा के रख देते हैं, और 3-4 महीने तक वो मेडिटेशन करते हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए कि हमारे देश की राजनीति में ऐसे युवा प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ आपके सामने हैं, जिन्होंने आज आधे घंटे आपसे बात की, और वो एक इनर सर्च के बारे में बात की, माइंडफुलनेस के बारे में बात की, और आप लोग इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरे अखबारों में इनके आर्टिकल समय समय पर पढ़ते रहे होंगे। और मुझे भी मौका मिला, इंडियन एक्सप्रेस ने एक बार इनको अड्डा, एक उनका प्रोग्राम है, उसमें भी आमंत्रित किया। तो ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति को आज हमने बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में। ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद देता हूं, और हमें उनको जाके फॉर्मली चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये कैसे हो गया, ये अर्चना श्रीवास्तव जी या मीरा कपूर जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो जानती हैं। मैंने कहा कि भाई डायरेक्टर को एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जाके उनको इनवाइट करना चाहिए, बोले उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आएंगे। धन्यवाद। ऐसे विनम्र राजनीतिज्ञ हमारे बीच में हैं, और मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने समय दिया। थैंक यू।